Hello students, let us go to the second part of the chapter, that is states of matter. We have already studied that the matter around you is made up of, the objects around you are made up of matter, and the matter is made up of small particles. We may call them atom. Now if you look objects around yourself, you can group them into three states of matter basically: solid, liquid and gas. However, please note that 5 states of matter exist. Two others are plasma state and BEC, that is Bose-Einstein condensate. Now I would like you to play this game. Quickly see around yourself and keep on listing the objects that you see without stopping. Okay, so let me start. I can see curtains, paintings, table, pen stand, mobile, clothes, some accessories, bed, pillows, a ball, etc., etc. Right? Now all these things that I have seen, they have a definite shape and they have a definite volume. They also have a fixed boundaries. Now we will do an activity. Take some sugar or some salt and put it in a jar of different shapes, or what you can do is you can take your glasses. You might have crockery where you have a conical glass, a cylindrical glass, maybe a glass of different shape, a square glass. So you will see that when you put sugar or salt in the shapes, different shapes of jars, the shape changes. Does that mean that solids do not have a definite shape? No. When you see solid as a crystal of sugar or a crystal of salt, they have a definite shape. The only thing is that the crystal particles are so small that you can fill it in the shapes of different jar. So I can still conclude that the solids have a definite shape, definite volume and a fixed boundary. What about elasticity? We know that majority of the solids are not elastic, they are rigid. That is, they maintain the shape under pressure. For example, if I take this book and if I try to press it, does it change the shape? No, it doesn't. But there are few solids that do change the shape. So when I say rigid, it is they maintain the shape under external force. But what about balloon? I can press it and I can change the shape. I can even mold it and twist it, and I can make different toys out of the balloons. Similarly, rubber band. The rubber band can be extended. It can be stretched on applying the force, and it regains the original shape when you release the force. However, if you apply more force, it breaks. So that means the rubber band has got some elasticity, and the elasticity is having some limit, because if you overstretch it, it will break. So rubber band, although being a solid, is elastic. The balloon that I told you, I can press it because the balloon is solid, but the gas inside it, the air inside it is gas. Even slime. Have you ever played with slime, or have you made your own slime, children? It's really fun to play with slime. You can stretch it, you can swirl it, you can do so much with it. So slime is also elastic. What about sponges? When you press the sponge, you can change its shape and you can again release it. Again, remember that although the sponge is solid, it has got several holes in it. The holes have air trapped in it, and when you press it, the air is expelled out. So although the solids are incompressible, sponge is the one which is compressible because of the porous nature. So generally compressibility is least in solids. So I sum up the qualities of a solid. It has got a definite volume, a definite shape, fixed boundary, less elasticity, least compressibility, and they are rigid. They are not fluid. Now we will go to the next state of matter, that is liquid. Again, how many liquids can you name? Come on, let me try. Oil, cold drink, juice, kerosene, milk.
Okay, I give up. See if you can name more. Honey. Okay. Now what you have to do is you have to take 50 ml of water and do the same thing that you did with solid. उसको आपको अलग अलग शेप के ग्लासेस में रखना है. कोई रेक्टेंगल होगा, कोई फनल शेप होगा, कोई कोनिकल होगा, कोई राउंड होगा. तो आप देखेंगे कि आपने लिक्विड को जिस भी शेप के ग्लास में रखा है वो वैसे ही शेप का दिख रहा है आपको. तो इसका मतलब क्या हुआ? लिक्विड्स का कोई फिक्स शेप नहीं होता है. पर हमने जो 50 ml लिया था वो तो 50 ml का 50 ml ही रहा. वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, शेप चेंज हुआ बट वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ. तो आई कैन से लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप, दे टेक शेप ऑफ कंटेनर बट दे डू हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम. ओके, जब पानी फ्लोर पे गिर जाता है तब क्या होता है? वो बहने लगता है. सो द लिक्विड फ्लोज एंड दैट इज़ वाई वी कैन से दैट लिक्विड्स आर फ्लूइड. तो सॉलिड कैसे हैं? रिजिड. बट लिक्विड कैसे हैं? फ्लूइड. नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिफ्यूजन. हमने फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी सीखा था डिफ्यूजन क्या है. हम क्या करेंगे? पानी लेंगे. लेट अस टेक 100 ml ऑफ वाटर इन अ ग्लास. ट्रांसपेरेंट ग्लास लेंगे कांच का. अब इसमें हम अलग अलग चीज़ें स्क्वीज़ करेंगे अलग अलग सैम्पल्स के साथ. जैसे मैंने फॉर एग्जांपल 6 ग्लासेस में पानी भर लिया. एक में मैं डालूँगी लेमन जूस, एक में इंक, एक में अल्कोहल, ग्लिसरीन, हनी, मे बी ऑयल. और फिर मैं देखूँगी कि ये चीज़ें अपने आप मिक्स होती है या नहीं होती है. आप देखेंगे डिफरेंट सब्सटेंसेस शो डिफरेंट रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफरेंट एक्सटेंड ऑफ डिफ्यूजन. तो लिक्विड्स का डिफ्यूजन तो होता है. ये सारे जो एग्जांपल हैं इंक, अल्कोहल, ग्लिसरीन, हनी, लेमन जूस, इसको जब हमने वाटर में डिफ्यूज़ किया तो डिफ्यूजन तो सबका हुआ. इसको बोलेंगे लिक्विड इन लिक्विड डिफ्यूजन क्योंकि लिक्विड लिया और लिक्विड में डिफ्यूज़ किया बट उसका स्पीड, उसका रेट अलग अलग होगा. जैसे लेमन जूस बहुत जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएगा, इंक बहुत जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएगा, पर हनी को टाइम लगेगा, ग्लिसरीन को भी टाइम लगेगा बिकॉज उसकी डेंसिटी इज़ मोर. नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिफ्यूजन ऑफ गैस इनटू सॉलिड. ये पॉसिबल है या नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है. सो गैसेस ऑल्सो डिफ्यूज़ इन सॉलिड, जिसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन कैन बी डिफ्यूज्ड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल. अब ये थोड़ा सा हाई लेवल का एग्जाम्पल है. ये जो प्रोसेस है एक्यूमुलेटिंग हाइड्रोजन ऑन मेटल सरफेस, इसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन. ADSORPTION. दिस इज़ सिलेबस ऑफ 11th and 12th स्टैंडर्ड, तो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे. नाउ टॉकिंग अबाउट डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इनटू लिक्विड. तो गैसेज लिक्विड में डिफ्यूज़ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है. एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ कैसे करते हैं पानी के अंदर? हाउ डू फिशेस ब्रीथ? बिकॉज पानी के अंदर ऑक्सीजन डिज़ोल्व होता है. इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी डिज़ोल्व होता है. ऑल्दो ऑक्सीजन इन एटमॉस्फियर, एयर में कितना ऑक्सीजन है? 21%, पर वाटर में कितना है? खाली 4%. तो आपको ध्यान रखना है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कम है, उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी हमको एयर में मिलती है. ओके, सॉलिड्स लिक्विड में डिफ्यूज़ हो सकते हैं क्या? ये भी हमने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट करके देखा है. सॉल्ट, शुगर, कॉपर सल्फेट, KMnO4, ये सारे सॉलिड्स हैं जो पानी में डिफ्यूज़ भी होते हैं, डिज़ोल्व भी होते हैं. डू रिमेंबर चिल्ड्रन, ये दोनों टर्म्स अलग अलग है, डिफ्यूजन एंड डिज़ोल्विंग. ओके, अब हम कंपैरिजन करेंगे. देखो, गैस टू गैस डिफ्यूजन मतलब ऑक्सीजन एयर में डिफ्यूज़ करना या अगरबत्ती जला के उसका स्मोक एयर में डिफ्यूज़ करना, दिस इज़ वेरी फास्ट. गैस टू लिक्विड थोड़ा सा स्लो होगा. गैस टू लिक्विड का एग्जांपल अभी हमने पढ़ा ना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर डिफ्यूज्ड इन वाटर. तो ये गैस टू गैस डिफ्यूजन से थोड़ा सा स्लो होगा. लिक्विड टू लिक्विड डिफ्यूजन उससे भी थोड़ा सा स्लो होगा. ये जो हमने एग्जांपल पढ़े लेमन इन वाटर, तो वो गैस टू लिक्विड से स्लो होगा. गैस टू सॉलिड उससे भी स्लो होगा. सॉलिड टू लिक्विड कब होता है? डज सॉलिड डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड? आई डोंट थिंक सो. बट डू लिक्विड डिफ्यूज़ इनटू सॉलिड? येस दे डू. एग्जाम्पल है, देखो जब आप इंक डालते हो चॉक में, इट गेट डिफ्यूज्ड इनटू द चॉक. या तो आप सीड्स को
पानी में डिज़ोल्व करते हो, ओके, तो क्या होता है, पानी सीड के अंदर गया तो वो क्या हुआ, लिक्विड इनटू सॉलिड हुआ, तभी तो वो सीड्स स्वेल हो जाते हैं। अगर रात को आपने मूंग भिगो के रखी है पानी में तो सुबह क्या होगा, मूंग स्वेल हो जाएगा। सो दैट इज़ लिक्विड टू सॉलिड। और दूसरा है सॉलिड टू सॉलिड डिफ्यूजन विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये लेक्चर को आप 2-3 बार सुनिए विथ अ स्लो पेस। ओके, नाउ what is the reason that rate of diffusion of liquid is higher than the solid? अभी हमने बहुत सारे diffusions compare किए और हमने देखा कि liquid में diffusion higher है, solid में diffusion slow होता है। क्यों ऐसा? Because liquid में particles are free to move and there is a greater space between each particle। मतलब अगर आप सॉलिड के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखेंगे और लिक्विड के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखेंगे, सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं और वो ज़्यादा मूव भी नहीं कर सकते, इसीलिए वहाँ पे डिफ्यूजन कम है। बट लिक्विड्स में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस भी ज़्यादा है और उनकी एवरेज वेलोसिटी भी ज़्यादा है, इसलिए डिफ्यूजन लिक्विड में फास्टर होता है।